Hello and welcome dear students. I am Asif Khan. I have been teaching English for last 37 years. English as a subject is quite a different thing from English as a language. As you know, it is the dream desire of every student to learn English and speak it fluently. If you want to do something big in your life, spoken English is a must learn skill. Today I am going to show you complete roadmap for 21 days by following which you will be able to speak English fluently. Academic English, which is taught in our schools, is so elementary that many students having scored distinction in board exams find it difficult to express themselves in English in any social setting, in any social surrounding. If you want to make progress in life, if you want to achieve something big in your life, if you want to fulfill your dreams to achieve success, here is a complete roadmap to learn English in 21 days. If you follow these tested techniques, you will be able to understand English well, you will be able to think in English, and you will be able to express your ideas clearly in written and spoken English. First of all, I will show you how basic language skills, which are called LSRW, are important in learning a language. So, listening, speaking, reading, and writing are the four basic language skills which have to be followed if you want to learn any language. You have learned Hindi in the same manner. When a child is born, he knows only one language and that is of weeping. बच्चा जब पैदा होता है तो केवल एक भाषा जानता है, रोने की. देन ही लिसन्स फॉर 1 ईयर, फिर वो पूरे 1 साल सुनता है. देन ही स्टार्ट्स स्पीकिंग बाय यूजिंग सिंगल लेटर्स, फिर वो एक एक अक्षर के शब्द बोलना शुरू करता है, पा, मा, दा, दी, इस तरह की. इसके बाद अगले 2-3 साल तक वो सुनता भी है, बोलता भी है. देन ही कम्स टू स्कूल, देयर ही लर्न्स रीडिंग and then he learns writing. You have learned Hindi by following this scientific method of language learning. That is why you are able to speak Hindi with fluency, with meaning and with understanding. चूँकि आपने हिंदी को इस वैज्ञानिक तरीके से सीखा है, नतीजा ये है कि आप हिंदी समझते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मीनिंग के आधार पे आप बात कर सकते हैं. लिसनिंग इंग्लिश, out of the 21 days, first 7 days you have to devote to listening. पहले 7 दिन सुनने में लगाना. For first 7 days, just listen as much English as you can without bothering about whether you are getting any meaning or not. पहले 7 दिन केवल इंग्लिश सुनना है, बिना इस बात की चिंता किए कि आपको कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं. जस्ट एन्जॉय लिसनिंग, केवल सुनने के आनंद लो. कानों के भीतर वो साउंड आना चाहिए जो इंग्लिश की है. डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट, इट मे बी एनीथिंग. आपकी रुचियों के अनुसार आप कुछ भी सुनना तय कर सकते हैं. इफ़ यू आर ए स्पोर्ट्स लवर, listen commentary of IPL or football match or a volleyball match. If you are interested in contemporary topics, listen debates on television. If you have a religious mindset, listen preachings of a saint. Whatever you like, जो भी आपका रुचि का क्षेत्र है, अपनी पसंद के क्षेत्र में इंग्लिश में कुछ सुनना है, ये बेसिक है. You may listen English news, you may read English newspapers, you may listen to podcasts in English and watch videos in English on YouTube and Facebook or on any other social media platform. After doing this for a sufficient time, try to become a shadow speaker. कुछ दिन, 2-3 दिन इसे लगातार 2-3 घंटे सुनने के बाद try to become a shadow speaker. अब कोशिश करो कि शैडो स्पीकर बना जाए. शैडो स्पीकिंग और कॉपीइंग मीन्स लिसन द डायलॉग ऑफ ए पर्सन एंड ट्राई टू रिपीट इट, ट्राई टू इमिटेट इट. किसी व्यक्ति का डायलॉग सुने और फिर उस डायलॉग को रिपीट करने की कोशिश करें. यू मे पॉज दिस वीडियो एंड रिपीट माई सेंटेंस ऑल्सो. इस वीडियो को पॉज करके आप मेरा डायलॉग रिपीट कर सकते हैं. इफ़ यू आर रीडिंग ए बुक, रीड इट लाउडली. अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, कोई नहीं है आसपास, देन रीड इट लाउडली, तो ज़ोर से पढ़ें.
दिस विल हेल्प यू इन गेटिंग द करेक्ट एक्सेंट ऑफ इंग्लिश। इससे आपको मदद मिलेगी इंग्लिश का सही एक्सेंट सीखने में। ऑल्सो ट्राई टू लिसन टू द नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और फोकस करना है उन लोगों को सुनने पे जो उस लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर हैं। अच्छी हिंदी सीखना है तो उन लोगों को सुनना पड़ेगा जो हिंदी के नेटिव स्पीकर हैं, मूल वक्ता हैं। इंग्लिश सीखना है, then you have to listen to the speakers who are native speaker of English। इंग्लिश को जिन्होंने मदर टंग के रूप में सीखा है, मातृभाषा के रूप में सीखा है, उन लोगों को सुनना है। एंड ट्राई टू इमिटेट देयर टोन एंड द वे ऑफ देयर स्पीकिंग। उनका बोलने का तरीका, उनका इंटोनेशन, उनका आरोह अवरोह, आवाज़ में जो उतार चढ़ाव होता है उसे मार्क करो एंड ट्राई टू इमिटेट। थोड़े दिन हम नकल करेंगे, फिर यू विल डेवलप योर ओन स्टाइल। आपकी अपनी एक शैली विकसित होगी, लेकिन मेहनत लगेगी। यू आर लकी दैट यू आर बॉर्न इन दिस हाईटेक एज। आप वैसे भी भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म इस दौर में हुआ है जब तकनीक अपनी पराकाष्ठा पे है, हमारे पास सुविधाएं भरपूर हैं। पहले ऐसा नहीं था, हर बात के लिए लाइब्रेरी जाना होता था, बुक्स कंसल्ट करना होती थी। नाउ वी हैव ए लॉट ऑफ एप्स अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। टेक हेल्प ऑफ सम एप्स। कुछ ऐप हैं जो इंग्लिश स्पोकन के काम आते हैं। डियोलिंगो एक ऐप है, इसमें द्विभाषी तरीके से आप हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन बना के, कोई भी कॉम्बिनेशन बना के द्विभाषीय तरीके से सीख सकते हैं। बहुत काम का है ये ऐप उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से, ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं। मेमोराइज इज अनदर ऐप which is also very useful, very helpful for the students। एल्सा स्पीक एक और है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं सुनने के लिए। These apps are very useful for beginners। ये ऐप शुरुआत करने वालों के लिए अच्छे हैं। किसी भी एक ऐप को डाउनलोड करें, उसके साथ प्रैक्टिस करें। BBC लर्निंग इंग्लिश इज़ अनदर रिसोर्स, एक बहुत काम का रिसोर्स है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और दी इंग्लिश वी स्पीक इनकी एक सीरीज़ है जिसमें नेटिव स्पीकर्स कैसे बोलते हैं ये दिखाया जाता है। दिस विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश स्पोकन बाय इट्स नेटिव स्पीकर्स। यू विल बी फेमिलियर विद द आरपी ऑफ इंग्लिश। आरपी रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन होता है, एंड आरपी इज डिफाइंड इन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी as the most commonly accepted or standard form of pronunciation। RP, received pronunciation, is the pronunciation of a word which you have to do। आपको जो उच्चारण करना है वो RP वाला होना चाहिए। One very common misconception about learning English, about speaking English, is that you must have a very rich vocabulary। एक बहुत सामान्य सी गलत धारणा है कि पहले आपकी वोकेबलरी अच्छी होना चाहिए। कीप इन माइंड दैट लर्निंग डिफ़िकल्ट वोकेबलरी इज़ ऑफ नो यूज़। ध्यान रखो, स्पीकिंग होता है कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल। वी वांट टू कन्वे आवर आइडियाज़ टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ अस एंड वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ गोइंग टू से। इफ़ एनी वन ऑफ अस यूजेज बॉम्बास्टिक वर्ड्स, वेरी डिफ़िकल्ट वर्ड्स, देन द मीनिंग विल बी लॉस्ट। अगर हम दोनों भारी भारी शब्दों का उपयोग करने लगे तो मीनिंग खो जाएगा। देयरफॉर यूज सिंपल वर्ड्स, यूज सिंपल लैंग्वेज। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विच। ये कहा जाता है कि संक्षिप्तता, सरलता बुद्धि की आत्मा है। इन कम्युनिकेशन इट इज़ नॉट राइट टू यूज डिफ़िकल्ट और बम्बास्टिक वर्ड्स। जब हम बातचीत कर रहे हैं तो ज्ञान प्रदर्शन नहीं कर रहे, हमें बहुत भारी शब्दों का, बहुत कठिन शब्दों का उपयोग अवॉइड करना है। द मेन फोकस इज ऑन कन्वेइंग आवर थॉट्स टू अदर्स एंड अंडरस्टैंडिंग देयर थॉट्स एंड आइडियाज। मूल उद्देश्य ये है कि सामने वाला क्या कह रहा है ये हम समझ जाएं, हम क्या कहना चाहते हैं ये वो समझ जाए, कम्युनिकेशन हो जाता है। Hence, no need to learn difficult words in the beginning of learning English। तो when you are starting learning English, जब आप अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर रहे हैं, सीखना शुरू कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कठिन शब्द याद होना चाहिए। They will come naturally when you dive deep in any field of knowledge। ये जो कठिन शब्द हैं, भारी शब्द हैं,
दे विल कम टू यू नेचुरली। ये आपके पास प्राकृतिक रूप से तब आएंगे जब आप ज्ञान के किसी भी एक क्षेत्र गहरी डुबकी लगाना चाहेंगे, गहरे उतरना चाहेंगे। सुपरफिशियल वोकेबलरी अलग होती है, सब्जेक्ट की डीप वोकेबलरी अलग होती है। अभी हम हर सब्जेक्ट की एक आउटलाइन चाहते हैं, तो वी डू नॉट नीड एनी deep vocabulary or difficult vocabulary. The next step is start communicating in English. Compel yourself, remind yourself, and tell yourself daily that you have to communicate in English. अपने आप को याद दिलाओ, लगातार याद दिलाओ कि आप अंग्रेजी में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। Tell yourself to write messages on WhatsApp, Insta, Messenger in English only. खुद पे एक चेक लगा दो, बड़ा मज़ा आएगा। खुद पे एक चेक लगाओ कि किसी से भी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे बातचीत करेंगे, मैसेज भेजेंगे, इट विल बी इन इंग्लिश, ये अंग्रेजी में होगा। दिस विल हेल्प यू इन डेवलपिंग योर राइटिंग स्किल्स। इससे आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होगी। इस काम में आप अपने मित्रों की मदद ले सकते हैं। रिलेटिव्स, रिश्तेदार भी काम आ सकते हैं। एल्डर्स, घर के जो बड़े हैं वे काम आएंगे। सीनियर्स, आपसे जो आगे वाले लोग हैं वे, एंड टीचर्स और आपके शिक्षक। बट फर्स्ट ऑफ ऑल टेल देम बिफोर हैंड, उन्हें पहले से बता देना कि यू वांट टू लर्न इंग्लिश, सो यू नीड देयर हेल्प इन दिस एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग में आपको उनकी मदद चाहिए। जहाँ भी गलती लगती है दे मे करेक्ट यू, वे आपकी गलतियाँ सुधरवाएंगे। तो इन द फर्स्ट वीक spend as much time as you can on listening English. जितना टाइम लगा सकते हैं उतना इंग्लिश सुनो। म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, गाने इंग्लिश के सुनो, डिबेट इंग्लिश की सुनो, न्यूज़ इंग्लिश की सुनो, जो भी इंग्लिश में सुनने को मिलता है उसे सुना जाए। सेकेंड स्टेप इज़ फॉर डे 8 to day 14, 8वें दिन से 14वें दिन तक जो काम करना है वो ये है कि मोबाइल सबके पास हो गई तो रिकॉर्ड ए शॉर्ट वीडियो ऑफ 3, 4, 5 मिनट्स अबाउट डेली हैपनिंग्स इन योर लाइफ। आपके जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में एक छोटा सा राइटअप तैयार करें और एक वीडियो बनाएं। इट मे बी ए बर्थडे इन योर फैमिली, एनी सोशल गैदरिंग और व्हाट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ। जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है उसका एक छोटा सा वीडियो इंग्लिश में रिकॉर्ड करें। नो नीड टू पोस्ट इट ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम और एनी अदर प्लेटफॉर्म, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू वॉच इट एंड यू विल बी ह्यूमिलिएटेड इफ़ यू हैव स्पोकन एनीथिंग रॉन्ग। तो कहीं कुछ नहीं करना, बस हिम्मत करके एक छोटा सा वीडियो 2, 3, 4 मिनट का रिकॉर्ड करना है। एक बार तो इसे सही में देख लो, जैसा बना है अपना ही वीडियो है तो ठीक है। देन वॉच इट इन 2 ways। इसी फिर 2 तरह से देखना है। फर्स्ट, म्यूट द साउंड एंड जस्ट ऑब्जर्व योर फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी गेस्चर्स माइंडफुली। पहली बार में वॉल्यूम म्यूट कर देना है और फिर उस वीडियो को देखना है। इसमें आपको अपने चेहरे के भाव दिखेंगे। आप मुस्कुरा रहे हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं, चेहरे की आकृति बिगड़ रही है, एटसेट्रा। एंड बॉडी गेस्चर्स, in language we use our whole body, so hand movement is very important, our eyebrow movement is very important, our smile is very important, our facial expressions as well as body gestures, they are very important. Keep a copy or register with you and note down what you find odd। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है उसे नोट डाउन करके रखें। ये जो लिखी हुई चीज़ें हैं दे विल हेल्प यू इन नेक्स्ट वीडियो, ये आपको अगले वीडियो में मदद करें। व्हेन यू रिकॉर्ड योर सेकेंड वीडियो, ट्राई टू अवॉइड रिपीटिंग द मिस्टेक्स ऑफ फर्स्ट वीडियो। तो एक तरीके से तो सुनना है, वॉल्यूम बंद कर देंगे, केवल वीडियो देखेंगे और चेहरे की भावभंगिमा, हाथ पाँव का मूवमेंट, चेहरे पे कॉन्फिडेंस, घबराहट जो दिखती है उसे दिखेंगे। जहाँ आपको बुरा लगे उसे नोट कर लेंगे और प्रयास करेंगे कि इसे इम्प्रूव करना है। एंड सेकेंड, टर्न योर फोन बैकवर्ड एंड प्लेस इट ऑन द टेबल एंड लिसन टू योर वॉइस। अपनी आवाज़ सुने, मोबाइल हटा दें, मोबाइल को टेबल पे उल्टा करके रख दें, वॉल्यूम खोल दें। नोट द वे यू प्रोनाउंस द वर्ड्स। अब ध्यान से सुनो आपने शब्दों का उच्चारण कैसे किया है। व्हेन योर वॉइस इज अप एंड व्हेन इट इज डाउन,
कब आपकी आवाज़ में तेज़ी आई, कब आपकी आवाज़ डाउन हुई। पे अटेंशन टू योर वे ऑफ स्पीकिंग, ध्यान दें आप कैसे बोल रहे हैं। व्हाट इज़ योर टोन, बोलने का की टोन कैसी है आपकी। वेदर यू आर स्टैमरिंग और नॉट, आप हकलाते हैं कहीं, ए कोई साउंड मुंह से निकलती है। एंड क्लैरिटी, जो आप कह रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है क्या, कोई सुने तो समझ जाएगा क्या कि आप ये कह रहे थे। पे अटेंशन टू योर वे ऑफ स्पीकिंग, टोन, स्टैमरिंग एंड क्लैरिटी। नोट डाउन योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियां नोट करके रखें। एंड अवॉइड देम इन नेक्स्ट वीडियो। और बस सिंपल सा फार्मूला है, आज जो गलतियां मिली हम इन्हें कल रिपीट नहीं करेंगे। रिपीट दिस प्रोसेस फॉर 7 days। ये काम लगातार 7 दिन करना है। डेली एक 2-3 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना है। टॉपिक वो होगा जो आपके जीवन में घटित हो रहा है, आपके आसपास घटित हो रहा है, उस पर पहले एक राइटअप तैयार करें। और जो राइटअप तैयार करने के बाद फिर उसे रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद 2 तरह से सुनना है। पहले साउंड ऑफ कर दें, खुद को देखें, जहाँ जहाँ आप खुद को बुरे लगते हैं तो फिर दूसरे लोगों को भी बुरे लगेंगे, उन्हें सुधारना है। नोट करके रखें कहाँ सुधारना है। दूसरा तरीका होगा, वीडियो ना देखें, केवल ऑडियो सुनें। और ऑडियो सुनने के बाद ये कोशिश करें कि आपको वही समझ में आ रहा है ना जो आप कहना चाहते थे। और ये काम पूरे 7 दिन तक करना है। ये 7 वीडियो बाद में डिलीट कर देना, किसी को नहीं बताना। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज यूज ऑफ फिलर वर्ड्स। फिलर्स आर वेरी कॉमन इन एवरी लैंग्वेज। हर भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बिना मतलब के बोले जाते हैं। दे आर फ्रिक्वेंटली रिपीटेड वर्ड्स विदाउट एनी मीन। ये हमारे दिमाग की एक इमरजेंसी डिवाइस है। जब उसे वो शब्द याद नहीं आता जो वो कहना चाहता है, जब उसे वो सेंटेंस फॉर्मिंग नहीं हो पा रही, तो वी यूज़ ए फिलर। दिमाग एक फिलर का उपयोग करता है। क्योंकि फिलर रेडीमेड होते हैं और जितनी देर में आपका मुंह उस फिलर शब्द को बोल रहा है, दिमाग अगली चीज, अगला सेंटेंस ब्रेन हमें प्रोवाइड करवा देता है। सम कॉमन फिलर्स ऑफ इंग्लिश आर यू नो। बहुत सारे लोग बेमतलब में बोलते हैं यू नो। अब यू नो की कोई ज़रूरत नहीं होती। यू सी, बाय द वे, राइट, इन आवर हिंदी, है ना, और क्या, पक्का, जो है। इस तरह के शब्द हैं जो मैक्सिमम लोग बोलते हैं। इन फर्स्ट 7 days यू विल बी एबल टू लिसन इंग्लिश सेंटेंसेस। पहले 7 दिन के लिए टारगेट है इंग्लिश के जितने हो सके उतने सेंटेंस सुनना। इन नेक्स्ट 7 days यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। भले ही आप लिख के करें, वीडियो बना के करें, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। नोट डाउन योर मिस्टेक्स एंड मेक श्योर दे आर नॉट रिपीटेड इन द नेक्स्ट वीडियो। अपनी गलतियाँ नोट करके रखना है, मेक श्योर करना है कि वे रिपीट ना हो। इम्प्रूव योर फेस एक्सप्रेशन। रिकॉर्डिंग के पहले एक बार मिरर के सामने खड़े होकर उसे बोल लें। जहाँ भी फेस एक्सप्रेशन सही नहीं लगता है उसे सही कर लें। अवॉइड यूजिंग फिलर्स, अननेसेसरी वर्ड्स का उपयोग ना करें। एक्सप्रेस थ्रू योर बॉडी, हैंड मूवमेंट होना चाहिए, फेस मूवमेंट होना चाहिए और बॉडी गेस्चर्स पे ध्यान देना है। नाउ वी कम टू थर्ड stage of our speaking experiment. It is for day 15 to day 21. ये 15वें से 21वें दिन तक काम आएगी। This is the third and final stage. Till now you have listened to others. आपने दूसरों को सुन लिया है। You have talked to the camera. आपने कैमरे से बात कर ली है, कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग कर ली है। You have sent text messages. आपने लोगों को लिख के अंग्रेजी भेज भी दी है। Now it is time to go to the people and talk to them in English. अब वक्त आ गया है कि आप निकल के बाहर जाएं, लोगों से मिलें और अंग्रेजी में बोलें। बहुत मुश्किल होता है। पहला जो सेंटेंस होता है उसका गले से निकलना इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन स्पीकिंग इंग्लिश। पहला सेंटेंस गले से निकल गया तो फिर डर बिल्कुल दूर हो जाएगा। फाइंड द प्लेस वेयर पीपल हैविंग द सेम टेस्ट। ऐसी जगह तलाश करो जहाँ उसी फील्ड के लोग हैं जो फील्ड आपको अच्छा लगता है। अपने जैसी पसंद के लोगों को तलाश करना है। देयर में बी सम इवेंट्स, कुछ इवेंट्स हो रही होंगी। टेक इनिशिएटिव, रीच द पीपल एंड इंडल्ज इन स्मॉल टॉक्स। लोगों के पास जाना है, हाय हेलो गुड मॉर्निंग जैसी सिंपल सी बातों से शुरुआत करना है।
Find out opportunities to go to stage and express your ideas on important topics in any program, in any event. कोई भी इवेंट है, स्कूल की हो, कॉलेज की हो, सोसाइटी की हो, इनिशिएट टू गो टू स्टेज, एक्सप्रेस योर आइडियाज़। अब आइडियाज़ अचानक पैदा नहीं हो सकते, तो यू मस्ट हैव रेडीमेड राइटअप। आपका राइटअप उस टॉपिक से जुड़ा हुआ रेडीमेड तैयार होना चाहिए। दो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क इन द बिगनिंग, शुरू में ये बहुत मुश्किल काम है, हिम्मत नहीं जुटा पाते, बट आफ्टर सम इंसल्ट्स यू विल बिकम इंसल्ट प्रूफ। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि एक दो बार अगर आप पे लोग हंसे, देन यू विल बिकम इंसल्ट प्रूफ, एज देयर आर सम वॉचेज विच आर वाटर प्रूफ। कुछ घड़ियाँ होती हैं जो वाटर प्रूफ होती हैं, जिनके भीतर पानी नहीं जा सकता। सून यू विल बिकम इंसल्ट प्रूफ। आप भी बहुत जल्दी इंसल्ट प्रूफ बन जाएंगे। आप पर इस बात का असर नहीं पड़ेगा कि लोग आपको देख के हंसे थे, मुस्कुराए थे। ट्राई टू एक्सप्लेन योर थॉट्स ऑन द टॉपिक। आपको फोकस्ड रहना है अपने आइडियाज़ बताने के बारे में। जो सेंटेंस आपने प्रिपेयर कर रखे हैं उन्हें ज़ोर से बोलने के बारे में। टेक हेल्प ऑफ द कैलेंडर। कैलेंडर की मदद लें। नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट डेज इन द मंथ। उन तारीखों को, उन दिनों को नोट कर लें जिस दिन कोई इम्पॉर्टेंट घटना है, इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, इम्पॉर्टेंट इवेंट है। डू ए लिटिल रिसर्च ऑन नेट। थोड़ी सी नेट पे सर्चिंग करें। कलेक्ट सम डाटा अबाउट द टॉपिक। उसके बारे में कुछ डाटा इकट्ठा करें। ऑर्गेनाइज योर मटेरियल। अपने मटेरियल को व्यवस्थित करके जमा लें। 5-7 सेंटेंस का एक पैराग्राफ तैयार कर लें। इट मस्ट हैव ए बिगनिंग, ए मिडिल एंड एन एंड। किसी भी अच्छे पैराग्राफ में एक शुरुआत होती है, बीच में उसका एक मिडिल होता है और एक कंक्लूजन या अंत होता है। तो ऐसा एक छोटा सा पैराग्राफ तैयार कर दें। एंड फाइंड आउट अपॉर्चुनिटी। फिर मौके का इंतज़ार करो, जो ही उस दिन कहीं मौका मिले स्पीक दैट। द सीक्रेट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ टू थिंक क्लियरली। बहुत अच्छे कम्युनिकेशन का, संप्रेषण का सीक्रेट है आपके विचार स्पष्ट होना चाहिए। यू मे एक्सप्रेस योर सेल्फ इन ए बेटर वे इफ़ योर कंसेप्ट इज़ क्लियर। अगर आपकी नॉलेज उस विषय के बारे में स्पष्ट है, आपकी अवधारणा स्पष्ट है, तभी आप उसके बारे में कुछ बता पाएंगे, क्लियरली बता पाएंगे। ऑलवेज फिल इन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। शुरू में प्रयास करें कि आप अपने मजबूत फील्ड में रहें। सब्जेक्ट पे बात करना है तो उस सब्जेक्ट पे बात करें जो आपको अच्छा आता है। गेम पे बात करना है तो उस गेम पे बात करें जिस गेम पे आपकी पकड़ अच्छी है। अब क्रिकेट आप जानते हैं, यू मे टॉक इजीली ऑन क्रिकेट। बिलियर्ड्स आपको नहीं आता तो यू कैन नॉट टॉक ऑन बिलियर्ड एज फ्रीली एज यू कैन डू ऑन क्रिकेट। तो अपने स्ट्रॉन्ग एरिया में रहना है। और नेवर चूज ए टॉपिक इन विच यू आर नॉट इंटरेस्टेड। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी वो टॉपिक मत चुनो बोलने के लिए, लिखने के लिए, सुनने के लिए जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, योर माइंड विल नॉट रिसीव द डाटा कमिंग टू इट। दिमाग स्वीकार ही नहीं करेगा, उसे मालूम है कि आपकी रुचि नहीं है, तो द माइंड विल नॉट एक्सेप्ट इट, वो उसे स्वीकार नहीं करेगा। ऑलवेज चूज ए टॉपिक, ऑलवेज सेलेक्ट ए टॉपिक इन विच यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड। तो ये 21 दिन का एक रोड मैप था। लर्निंग इंग्लिश इज़ ए ग्रेजुअल प्रोसेस, इज़ ए कंटिन्यूअल प्रोसेस। लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार सीखने वाली प्रक्रिया है। स्टार्ट इट इन दिस समर वैकेशन। इसे इन गर्मी की छुट्टियों में शुरू कर दो और you will see after 21 days you are in a far better position to express yourself, to write something in English, to think something in English। और इस हैबिट को कंटिन्यू रखेंगे। इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। एंड द रीज़न इज़ इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी ईजी। बट ऑलवेज कीप इन माइंड, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इज़ वन थिंग, English as a language is another thing. We are talking about English as a language। और जब लैंग्वेज की बात करेंगे तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहा जाता है। आप लगातार प्रैक्टिस करें। फील फ्री टू राइट एनी डाउट विच यू हैव रिगार्डिंग दिस इन द ड्रॉप बॉक्स। यू मे टेक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं
किसी भी ब्राउज़र में चैट जीपीटी सर्च करें, एक बार मोबाइल वेरिफिकेशन करना होता है, कर दें उसे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। फिर यहाँ जो भी आप लिख देंगे वो ये कर देगा। हम एक टास्क देते हैं, राइट 3 सेंटेंसेज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसने लिखा शी इज करेंटली स्टडिंग फॉर हर फाइनल एग्जाम्स एंड फीलिंग ए बिट स्ट्रेस्ड। दे आर रिनोवेटिंग देयर किचन, सो देयर इज ए लॉट ऑफ नॉइज कमिंग फ्रॉम देयर हाउस। वे अपने किचन को रिनोवेट करवा रहे हैं तो काफ़ी शोर आ रहा है। आई एम वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ रिसर्च एंड अटेंशन टू डिटेल। ये बड़े लग रहे हैं तो इसे निर्देश देते हैं, राइट शॉर्ट सेंटेंसेस। अब इसमें छोटे छोटे सेंटेंस लिखे, द डॉग इज बार्किंग लाउडली, शी इज डांसिंग ग्रेसफुली, दे आर लाफिंग अनकंट्रोलेबली, ही इज कुकिंग डिनर फॉर अस, वी आर वाचिंग ए मूवी टुगेदर, द बर्ड्स आर सिंगिंग मेलोडियसली। ये एआई टूल चैट जीपीटी जो है ये पिछले रेफरेंस को याद करता है। अगर आप चाहते हैं तो इसे लिखें, ट्रांसलेट देम इन हिंदी। अपनी लैंग्वेज में अगर आप इसका ट्रांसलेशन चाहते हैं तो ये ऊपर के 10 सेंटेंस हिंदी कर देगा। एक बार हिंदी देख लें, इसके बाद इंग्लिश का यूज़ करें और फिर इनकी प्रैक्टिस करें, आपके काम आ सकता है। एक चैनल से मैं आपका परिचय कराना चाहता हूँ, करिश्मा ऑन कमांड, मास्टर योर करिश्मा। ये एक चैनल है जिसमें 6.64 मिलियन सब्सक्राइबर जिसके पास हैं, 382 वीडियोस ये अपलोड कर चुके हैं। जब आप इसे सर्च करेंगे तो आप किसी भी वीडियो को स्टार्ट करें, स्पीक लाइक दिस या डोंट स्पीक लाइक दिस, स्टॉप लुकिंग फॉरवर्ड, इनके वीडियोस को नीचे सबटाइटल्स रहते हैं, सुने, बार बार सुनने पे आपको कुछ समझ में आएगा। बहुत जल्दी चमत्कार नहीं होगा, बट इनके पुराने वीडियोस को अपनी पसंद के यहाँ से वीडियो छांट लें। यहाँ है, इनका पॉडकास्ट भी है, आप चाहें तो उसे भी सुन सकते हैं। उम्मीद है ये प्रयोग अच्छा लगेगा, इसे करें, कमेंट बॉक्स में लिखें आपने इन चीज़ों को किया, कैसे नतीजे आए, कॉन्फिडेंस बढ़ा या नहीं। प्लीज़ शेयर दिस कंटेंट विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड all the persons who are interested to learn English. Thank you for watching me.